السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں 4 TV خبرنامہ۔ پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ سرخیاں پیش کرتے ہیں۔ برائڈل اسٹور پتھر گھٹی حیدرآباد۔ اور مخدوم برادرز کا پاجامہ، کوٹ پینٹ، پٹھانی سوٹ، جو پوری شیروانی، شادی ہو کے تقریب، ہر محفل میں شہر کا جگمگاتا شو روم مخدوم برادرز پتھر گھٹی حیدرآباد۔ بعض نواحی پنچایتوں کے GHMC میں انضمام سے متعلق تجویز بلدیہ کے اجلاس میں مسترد۔ حیدرآباد میں دوپہر کے وقت موسلا دھار بارش سے نشیبی علاقے جھیلوں میں تبدیل، بعض مقامات پر سیلاب جیسے مناظر۔ چندر بابو نائیڈو صرف 42,06,000 روپے کے اثاثوں کے مالک، میڈیا کے سامنے دعویٰ۔ اہلیہ بھونیشوری 33 کروڑ کی مالک۔ 17 اور 18 سپٹمبر کو منعقد ہونے والے عثمانیہ یونیورسٹی کے امتحانات ملتوی، رجسٹرار کا اعلان۔ اور ریاست نگر کی لڑکی کا اغوا اور عصمت ریزی کے ملزم کے خلاف نربھے ایکٹ کے تحت مقدمہ، مجلس کی مداخلت کے بعد سنتوش نگر پولیس کا اقدام۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ عظیم تر بلدیہ حدود میں بعض نواحی پنچایتوں کے انضمام سے متعلق تجویز کو GHMC کے اجلاس میں متفقہ طور پر مسترد کر دیا گیا۔ تمام جماعتوں کے ارکان نے اس تجویز کی مخالفت کی اور کہا کہ اس سے مجلس بلدیہ پر مزید مالی بوجھ پڑے گا، لہذا اس انضمام کو قبول نہیں کیا جا سکتا۔ ابتدا میں اس انضمام کے موضوع پر ہنگامہ آرائی بھی ہوئی۔ مجلسی اور تلگو دیشم کے کارپوریٹرز نے انضمام کی مخالفت میں نعرے لگائے۔ اجلاس کے دوران مجلس اور BJP کے کارپوریٹرز کے درمیان اس وقت بحث و تکرار بھی ہوئی جب BJP کے کارپوریٹرز نے میئر محمد ماجد حسین کے خلاف نعرے بازی کرتے ہوئے ان کے استعفے کا مطالبہ کیا۔ BJP ارکان کی مسلسل خلل اندازی کو دیکھتے ہوئے میئر نے مارشلز کو طلب کیا اور احتجاجی BJP ارکان کو معطل کرتے ہوئے اجلاس سے باہر کروا دیا۔ حیدرآباد GHMC کو دوسرے علاقوں کو بھی اس میں مرج کرنے کی بات کی گئی تھی، تو آپ کی کونسل میں سے کیا ڈیسیژن لیا گیا؟ کونسل نے آج اسے یونانیمسلی ریجیکٹ کیا ہے۔ جو اس سے پہلے کا جو پریمبل آیا تھا 25 گرام پنچایت ملانے کا، اور آج جو پریمبل آیا تھا 15 نئے گرام پنچایت ملانے کا، اس کو یونانیمسلی ریجیکٹ کیا ہے اور ویریس ریزنز بھی سائٹ کیے ہیں ہم نے، جس میں سے یہ ہے کہ جو ریونیو GHMC جنریٹ کرتا ہے وہ ریونیو فی الحال جو پریزنٹ GHMC ایریا ہے اس کو ڈیولپ کرنے کے لیے سفیشینٹ نہیں ہے، اور اس کے بعد تقریباً بڑی پریشانی ہو رہی ہے اسٹیٹ فنڈز اور سینٹرل فنڈز کو حاصل کرنے کے لیے۔ پھر یہ نیا 300 اسکوائر کلومیٹر سے ایریا جو GHMC سے جڑا گیا ہے، اس کو ڈیولپمنٹ اگر ورکس یہاں کرنے ہیں تو یہ پریزنٹ جو ایریا ہے اس پہ بہت زیادہ فرق پڑے گا، اور GHMC فی الحال فائنینشیل پوزیشن میں نہیں ہے اس کو لینے کے، اور اسی کے ساتھ ساتھ یونانیمسلی پورے پولیٹیکل پارٹیز نے مل کر اس کو ریجیکٹ کیا ہے، اور کمشنر کو بھی یہ ہدایت دی ہے کہ کوئی ڈیولپمنٹ ایکٹیویٹیز اس نئے حلقے میں مت لیں۔ It is the third tier of the government. آپ کو سینٹرل گورنمنٹ یہ رہتی ہے جیسا سینٹرل گورنمنٹ آپ کو بعض اسٹیٹ گورنمنٹ کے معاملات میں مداخلت نہیں کر سکتی ہے، اسی طریقے سے آپ کو جو ہے یہ جو جیسا جو بعض جو چیزیں جو بعض ایشوز رہتے ہیں جو لوکل باڈی کے پرویو میں آتے ہیں، اس کے اندر اسٹیٹ گورنمنٹ بھی مداخلت نہیں کر سکتی ہے، تو لہذا آپ یہ چیز کو میں یہ پھر سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ آگے ریجیکٹ کیجیے پروپوزل۔ تلگو دیشم پارٹی کے صدر چندر بابو نائیڈو نے میڈیا کے سامنے اپنے افراد خاندان کے اثاثہ جات کی تفصیلات پیش کی۔ چندر بابو نائیڈو نے بتایا کہ وہ صرف 42,06,000 روپے کے اثاثوں کے مالک ہیں، جبکہ ان کی اہلیہ بھونیشوری 33 کروڑ 5,02,000، فرزند لوکیش
4,92,00,000 और बहू ब्रह्मणी 3,30,00,000 रुपए मालियत के असासों की मालिक हैं। चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि 1992 में कायम की गई हेरिटेज कंपनी पूरी शफाफियत के साथ काम कर रही है। गुज़िश्ता साल के मुकाबले में हेरिटेज कंपनी के कारोबार में करीब 12% का इजाफा हुआ। सदर तेलुगुदेशम का कहना था कि वो अपने असासों की तफसीलात अवाम के सामने लाना अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। उन्होंने दीगर सियासी कायदीन पर भी जोर दिया कि वो अपने असासों की तफसीलात अवाम के सामने लाए। यूपीए हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि यूपीए के दौर में बदनवानियों से मुल्क की सनती तरक्की पर काफी असर पड़ा है। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी ने तेलुगुदेशम के सदर और नारा लोकेश की जानिब से कराए गए इंतखाबी सर्वे को चोर सर्वे करार दिया है। मीडिया से बात करते हुए पार्टी के अरकान असेंबली श्रीकांत रेड्डी और गुरुनाथ रेड्डी ने कहा कि गैर मारूफ कंपनी की मदद से सर्वे करवाते हुए तेलुगुदेशम पार्टी की मकबूलियत को बढ़ाने की कोशिश की गई है, जबकि माजी में मुख्तलिफ कौमी चैनल्स ने अपने सर्वे में वाईएसआर कांग्रेस की कामयाबी की पेशकियासी की। श्रीकांत रेड्डी ने कहा कि अवाम की जानिब से मुस्तरद किए जाने पर ही सदर तेलुगुदेशम ने अपनी ये यात्रा मनसूख की है। उन्होंने कहा कि चंद्रबाबू नायडू का मुजव्वजा दौरे दिल्ली निचली सियासत का हिस्सा है। रियासत की तकसीम के ऐलान के खिलाफ सीमा आंध्रा में एहतजाज जारी है। मगरबी गोदावरी में पीर के दिन भी बड़े पैमाने पर एहतजाजी मुजाहरे किए गए। एलूर में खानगी स्कूल्स के सामने एहतजाज करते हुए स्कूल्स बंद करवाए गए। मगरबी गोदावरी में भी जल गरजना का एहतमाम किया गया, जिसमें 25 कश्तियों ने हिस्सा लिया। तकरीबन 2000 अफराद ने इस एहतजाज में हिस्सा लेते हुए मुत्तहदा रियासत की बरकरारी का मुतालबा किया। मशरिकी गोदावरी के अमलापुरम में हजारों अफराद ने रैली में शिरकत की। तलबा ने एहतजाज में हिस्सा लेते हुए अवामी नुमाइंदों से इस्तीफों का मुतालबा किया। मुत्तहदा रियासत की हिमायत में सेक्रेटेरिएट में भी सीमा आंध्रा के मुलाजिमीन का एहतजाज जारी है। पीर को मुलाजिमीन ने जे ब्लॉक के पास धरना देते हुए रियासत की तकसीम के खिलाफ नारेबाजी की। एहतजाजी मुलाजिमीन रियासत को मुत्तहिद रखने और हमें इंसाफ चाहिए के नारे लगा रहे थे। रियासती वजीर शैलजा नाथ का कहना है कि रियासत की तकसीम के फैसले से न सिर्फ रियासत बल्कि मुल्क को भी नुकसान होगा। मीडिया से बात करते हुए शैलजा नाथ ने कांग्रेस आला कमान से इस फैसले पर नजरसानी का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत और कांग्रेस आला कमान को मुत्तहदा आंध्रा के हामियों के जज्बात को भी समझना चाहिए। रियासती वजीर शैलजा नाथ ने कहा कि अगर रियासत को तकसीम किया गया तो रायल सीमा शमशान घाट में तब्दील हो जाएगा। उन्होंने वाईएसआर कांग्रेस और तेलुगुदेशम को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि दोनों जमातें दोहरे मौक़िफ़ से अवाम को गुमराह कर रही हैं। రాజీనామాతో బెదిరిస్తున్నారని కూడా అంటున్నారు. అందువల్ల నాయకులు ఏం మాట్లాడినాక సమాధానం చెప్పుకోను. అసలుకి గతంలో పేపర్లను కానీ లేక మీడియా క్లిప్పింగ్స్ చూసుకుంటే అసలు వాళ్ళు ఏందో వాళ్ళకే అర్థమవుతుంది. కాబట్టి అంత అవసరం లేదు. మేమైతే ఈ నిర్ణయం అన్నది పార్టీకి కానీ రాష్ట్రానికి కానీ దేశానికి కానీ మంచిది కాదు, ప్రజలకు నష్టం చేస్తుంది కాబట్టి మార్చుకొని కోరుకుంటున్నాం. रुकने पार्लियामेंट कड़पा वाईएस जगनमोहन रेड्डी के एहसाजात के मुकदमे के सिलसिले में गिरफ्तार साबिक वजीर मोपी देवी वेंकटरमना की अबूरी जमानत मंजूर हो गई है। सीबीआई की खुसूसी अदालत ने साबिक वजीर को 2 अफराद की जमानत और 1 लाख रुपए बतौर जमानत जमा कराने की हिदायत देते हुए 31 अक्टूबर तक अबूरी जमानत मंजूर की। वाज़ेह है कि साबिक वजीर मोपी देवी वेंकटरमना ने नासाजी मिजाज की बुनियाद पर इलाज के लिए अदालत में जमानत की दरखास्त दाखिल की थी।
बीजेपी के सीनियर लीडर वेंकैया नायडू नरेंद्र मोदी को वजीर आजम देखना चाहते हैं। एक होटल में मीडिया से बात करते हुए वेंकैया नायडू ने दावा किया कि पार्टी में नरेंद्र मोदी को वजीर आजम के ओहदे का उम्मीदवार बनाए जाने की मुखालिफत कोई भी नहीं कर रहा है। उन्होंने यह भी दावा किया कि आइंदा लोकसभा इंतखाबात में बीजेपी 300 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल करेगी। वेंकैया नायडू ने ताहम ये नहीं बताया कि मरकज में LK अडवाणी आखिर किस बात पर नाराज हैं। वेंकैया नायडू का कहना था कि मोदी के वज़ीर आज़म बनने से मुल्क की तरक्की होगी। राष्ट्रपति दिनकर पश्चिम पर राष्ट्र माने केवल भौगोलिक इलाका नहीं है, राष्ट्र माने राष्ट्र में रहने वाले हरेक जन రాంధారి జనసనాయకురాన ఏకదాసాన్ని కూడా ఉదాహరించాడు. ఈ దేశంలో ఉన్న అన్ని ప్రాంతాల ప్రజలు వెనకబడిన వాళ్ళు, తీర్పుగా ఉన్న వాళ్ళు, నిర్లక్ష్యం చేయబడిన వాళ్ళు, వాళ్ళందరూ సంగతి చూడాలి. ఇన్ని సంవత్సరాల యొక్క కాంగ్రెస్ పరిపాలన దేశంలో అంతరాలు పెంచింది, పేదరికాన్ని పెంచింది, ఆర్థిక అసమానతలు పెంచింది, ప్రాంతీయ అసమానతలు పెంచింది, పరిపాలించింది వాళ్ళు. అందువల్ల వాళ్ళు ఇతర నీతి साबिक वजीर शंकर राव ने कहा है कि गुजरात 2002 के फसादात मुल्क की सेक्युलर तारीख पर धब्बा हैं और तारीख इन फसादात के लिए नरेंद्र मोदी को कभी माफ नहीं करेगी। मीडिया से बात करते हुए शंकर राव ने सवाल किया कि मुल्क में 28% अक़लियतें हैं, क्या नरेंद्र मोदी की पार्टी इन अक़लियतों का तहफ़्फ़ुज़ कर पाएगी? शंकर राव ने कहा कि मुल्क के सेक्युलर वक़ार की बरकरारी सिर्फ कांग्रेस से मुमकिन है। उन्होंने वजीर आजम डॉक्टर मनमोहन सिंह की जानिब से वजीर आजम के ओहदे के लिए राहुल गांधी की हिमायत किए जाने का खैर मकदम किया। मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की मुदाखलत के बाद संतोष नगर पुलिस ने रियासत नगर की रहने वाली लड़की का अगवा और इस्मत रेजी करने वाले सत्य प्रकाश सिंह के खिलाफ निर्भय एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। सदर मजलिस बैरिस्टर असुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर अरकान असम्बली मुमताज अहमद खान और अहमद बलाला ने इतवार की शब संतोष नगर पुलिस स्टेशन पर इस वाक़े के खिलाफ एहतजाज किया और DCP तरुण जोशी से मुतालबा किया कि लड़की का जिनसी इस्तेहसाल करने वाले खाती के खिलाफ निर्भय एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया जाए, जिसके तहत ज्यादा से ज्यादा मौत की सजा सुनाई जा सकती है। अरकान असम्बली ने बरहम नौजवानों को समझाया और वहां से उन्हें मुंतशिर कर दिया। इस वाक़े के खिलाफ नौजवानों में शदीद बरहमी पाई जाती है। मुमताज अहमद खान और अहमद बलाला ने मुतासरा लड़की की वालिदा से भी मुलाकात की। लड़की की वालिदा ने बताया कि चंद अनासिर ने मदद के बहाने उनकी बेटी का नाम उछाल दिया है, जिससे उनकी खानदान की इज्जत मुतासर हुई है। लड़की का नाम आम होने से मुतासरा खानदान को सख्त दुश्वारियां हो रही हैं। साबिक वजीर कोमटी रेड्डी वेंकट रेड्डी ने कहा है कि तेलंगाना वज़रा पर ओहदों का नशा हावी हो चुका है। मीडिया से बात करते हुए कोमटी रेड्डी ने तेलंगाना वज़रा को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि तेलंगाना वज़रा दरअसल वज़ीर आला से खौफज़दा हैं। अगर वज़रा ओहदों से इस्तीफा देकर अवाम के सामने आए तभी अवाम उन पर भरोसा कर सकते हैं। साबिक वजीर ने कहा कि तेलंगाना वज़रा का रवैया ऐसा है जैसे चोर खुद पुकार कर कह रहा हो चोर आया चोर आया। कोमटी रेड्डी ने कहा कि सीमा आंध्रा के कांग्रेसी कायदीन की वजह से तेलंगाना में एक बार फिर खुदकुशियों का दौर चल पड़ा है। खबरों का सिलसिला एक वक्फे के बाद जारी रहेगा।